Dear student, very good afternoon to all of you. Welcome back. So, let us recapitulate what we have studied yet. So, first of all, we have learned about the fundamental concepts, introductory concepts of the thermodynamics, in which we learned about the system, types of the system, property, different kind of the thermodynamic property. We also come to familiar with thermodynamic equilibrium, thereafter the process, thereafter the cycle, pure substances, all the fundamental things that we have learned. Thereafter, we moved on to zeroth law of thermodynamics. We learned about the statement and what was the outcome of the zeroth law of thermodynamics. The outcome means it provides a means for measuring the temperatures by the use of thermometers. So we learned about different kind of thermometers and what is the thermometric property and what with the we learned about the how can we measure the temperature. We learned the two methods of measurement of temperature before and after 1954. So we practiced few numerical problems based on that. We also came to know about absolute scale of temperature and the conversion of different temperature from one uh, one unit to another. In the next topic, we came to know about thermodynamic concept of energy, in which we learned what how can we define the work done, how it is related to the selection of a particular system and system boundary. So we learned different kind of mechanical work like displacement or PDV work, thereafter pedal wheel work, flow work, shaft work. We also learned about convention of work transfer, that work done by the system is taken as positive and work done on the system is taken as negative. Thereafter, we learned in details about closed system work, that is also termed as non-flow work. Thereafter, thereafter, uh, we understood that work is a path function and what uh, are the conditions that we can apply by the use for the using W is equal to PdV. W is equal to PdV. Under what condition it can be it can be applied. Also, thereafter we learned about the different closed system work for different processes like constant volume process, that is also termed as isoporic or isomeric process. Thereafter, for constant pressure process, that is also termed as isobaric and isopestic process. Thereafter, the constant temperature, adiabatic and polytropic work done. So the for the polytropic work, isothermal work done, we learned about the MRT ln V2 upon V1, ln V2 upon V1, where the process is 1 to 2, and another we can write V1 upon V2. In the similar fashion, adiabatic case, the W is equal to 1 to 2. If the process is 1 to 2, then P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1. Gamma minus 1. Thereafter, if it is polytropic, then in the case of polytropic, we learned about P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1. So these all formula that we have derived and we have learned. Thereafter, we learned the different slope of isothermal. That means the on PV diagram, the slope of PV diagram for isothermal is minus P by C and sorry minus P by V
Thereafter, the same slope dp upon dv for adiabatic, it was gamma times minus p upon v. Means what? The adiabatic is gamma times more than that of slope of isothermal. So thereafter we learnt about the ideal gas equation for the different processes, and thereafter we had some few numerical problems that we have learned based on the evaluation of thermodynamics. Thereafter we uh, got familiar about the heat, a specific heat at the constant volume, a specific heat at the Hello. constant Hello. pressure. Excuse me, sir. Hello. Yes, Sir, work done in adiabatic process, is it path dependent or path independent process? yes, it is path dependent. Okay, sir. Let us draw a conclusion from here. Like, if we will put PV1, P1 V1 is equal to RT1, then it will become R by. इसके बाद हम लोगों ने कहाँ पे आ गया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे आ गए थे, जिसपे कि हमने पहला स्टेटमेंट बनाया था कि साइकिल के लिए क्या होता है, नेट चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर, नेट हीट इज इक्वल टू समेशन ऑफ नेट वर्क. सो देयर आफ्टर हमने उस स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया था. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि हीट ट्रांसफर पाथ डिपेंडेंट है, एनर्जी प्रॉपर्टी है. उसके बाद फिर हमने एनर्जी एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है. उसके बाद परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड ये इम्पॉसिबल है. तो यहाँ तक हमने किया था. उसके बाद फिर हमने एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन किए थे. फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या क्या हीट ट्रांसफर होगा, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, पॉलीट्रोपिक. तो हमने उस केसेस में हमने सारा डिस्कशन किया था कि आइसोथर्मल का क्या होता है. उसके बाद हमने ब्रीफली हमने एनालाइज किया था फ्री एक्सपेंशन का बारे में हमने सीखा था. उसके बाद फ्लो वर्क में आ जा गए थे. फ्लो वर्क में हमने जाना था कि जो भी एंट्री पे होगा वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम वो फ्लो वर्क देता है. ये हमेशा ओपन सिस्टम के केसेस में होता है, जिसमें कि फ्लूइड बाउंड्री को अगर एंटर कर रहा होता है उस समय सिस्टम पे वर्क किया जाता है. दैट्स व्हाई इट विल बिकम नेगेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा एंट्रेंस पे पीवी एट 1 यानी P1 V1 एट द एंट्रेंस. सिमिलरली अगर एग्जिट होगा का मतलब क्या है, फ्लूइड पुश कर रहा है, बाउंड्री से बाहर इफेक्ट ला रहा है. therefore that will be the work done by the system on surrounding, and that will be again pressure into volume at the exit. तो इतना तक हमने पढ़ा था. उसके बाद हम आज कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही, और उसको हम लोग ओपन सिस्टम के लिए लगाएंगे. अभी तक हमने जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था जैसे पीडीबी वर्क, तो वो हमने क्लोज सिस्टम के लिए किया था. अब हम इसको ओपन सिस्टम के लिए करेंगे. उससे पहले थोड़ा सा हम दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, एक हम लोग, ताकि रिफ्रेशल भी हो जाए. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन हम इस पे हम लिखने जा रहे हैं, ताकि आपका रिफ्रेशमेंट हो जाए, थोड़ा सा आप कनेक्ट हो जाओ, सारा रिकॉल कर लो कंसेप्ट. और ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन है आपका आपका एक क्वेश्चन हम यहाँ शेयर कर देते हैं, क्वेश्चन से ही, वर्कबुक से. वो हमने वर्कबुक में डाल रखा है, सो या फिर हम इसको टाइप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. जस्ट वेट. इसमें अवेलेबल नहीं है. चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन भी ध्यान देना होगा, हम डालें या नहीं. चलिए हम इसको टाइप कर दे रहे हैं. थोड़ा सा दो क्वेश्चन है जिसको आप क्वेश्चन पैरेलली में आप, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गेट का ही क्वेश्चन है. सो लेट अस राइट डाउन. इसमें क्या कह रहा है कि आप प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ते जाइएगा. प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं, दो ही प्रॉब्लम आज करवाएंगे. उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर स्टेडी फ्लो एनर्जी ओपन सिस्टम के लिए आ जाएंगे. सो इसमें क्या कह रहा है कि अ फ्लूइड सिस्टम, एक फ्लूइड सिस्टम दिया हुआ है, कंटेन अ piston, cylinder, machine passes through
a complete cycle of 4 processes. इसको पढ़ते जाइए, समझते जाइए. The summation of, हम ये स्टेटमेंट फिर मिटा देंगे, एक बार पढ़ लेना, इसमें कहीं कोई वैल्यू है नहीं. Of all heat transfers is 340 kilojoule per cycle. किलोजूल पर साइकिल. ये माइनस दिया हुआ बिकॉज माइनस 340 किलोजूल पर साइकिल दिया हुआ है. द सिस्टम कंप्लीट्स 200 साइकिल. प्लीज मेरे हैंड राइटिंग से थोड़ा एनवाई मत होना, क्योंकि ये मेरा हैंड राइटिंग है, और अगर थोड़ा सा हम हैंड राइटिंग बैठाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने लग जाएगा. तो यहाँ पे हैंड राइटिंग मायने नहीं रखेगा, कंटेंट मायने रख रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे. कंप्लीट द फॉलोइंग table and also find net work in kilowatt. So please read it out. ये क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद हम एक टेबल दे रहे हैं, उसके बाद हम एक टेबल देंगे और इस टेबल को हमें फिल करना है. तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इस पे है तो पहला दिया हुआ प्रोसेस, दिया हुआ क्यू, ध्यान दीजिएगा किलो जूल पर मिनट में है. उसके बाद दिया हुआ है वर्क, ये भी है किलो जूल पर मिनट में. अब तब तक हेडिंग पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए तब तक. उसके बाद डी यू, अगेन ये किलो जूल पर मिनट में. प्रोसेस कितना है, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. It is given as 0, 42,000. जो लोग सॉल्व कर रखे हैं वो फिर से अपने माइंड लगा के नए ढंग से सोच करके कीजिए. ऐसा ना हो कि जो सोच रखे हैं वो बना लिए चुकी तो हम माइंड नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है. फिर से माइंड लगाइए, आप देखिए कुछ ना कुछ नया लगेगा आपको. ये जो डॉटेड है उसको आपको फिल करना है, ये डॉटेड हो गया बस. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ यू विल हैव टू आंसर. क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन खुद से जरा 2 मिनट हम दे रहे हैं टाइम, थोड़ा सा कीजिए, सबको आंसर मिल जाना चाहिए. सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये स्ट्रेटजी बना लो कि हम अगर टाइम मिला तो हम सॉल्व कर सकते हैं, पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे. वो आप रफ वर्क कर लो, क्योंकि हमेशा जब प्लान जरूरी होता है, बाकी कैलकुलेशन तो फटाफट हो जाएगा, हाथ राइटिंग जो होता है वो तो आप फटाफट कर लोगे, लेकिन उसके पहले आपको स्ट्रेटजी होना चाहिए कौन कौन सा स्टेप को कैसे फॉलो कर सकते हैं. So a fluid system contain a piston cylinder machine passes through a complete cycle of 4 process. Process कौन सा है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1. The summation of all heat transfer is minus 340 kilojoule per cycle. The system completes 200 cycle per minute. So complete the following table. अब हम ऊपर वाला मिटाने जा रहे हैं. ऊपर वाला के क्या हो रहा है, कंटेंट हम यहाँ पे लिख देंगे. क्या कह रहा है ये कि समेशन ऑफ क्यू जो दिया हुआ है माइनस 340 किलो जूल पर साइकिल है, और ये 200 साइकिल पर मिनट दिया हुआ है सिस्टम का. ये हमारा 2 टेबल है जो हमें 2 प्रॉब्लम चाहिए होगा. प्लीज आप सोचिए, पहले माइंड चलाना है, बाकी सॉल्यूशन से दिक्कत नहीं है. आपको ये होना चाहिए कि जो आपके पास कंसेप्ट है, जो टूल अवेलेबल है, कि आप उससे सॉल्व कर पाए. हम 2 मिनट म्यूट हो जा रहे हैं, आप लोग माइंड अपना सोचिए. एंड दिस इज द गेट क्वेश्चन. ये गेट ही का शायद क्वेश्चन है, या हाँ गेट का ही है, आई एम नॉट रॉन्ग.
सो चलिए, आप लोग सारे लोग हो सकते हैं। देखिए, डे समेशन ऑफ क्यू ये दिया हुआ है, इस लाइन का समेशन दिया हुआ है, यानी हमारे पास फर्स्ट रो का समेशन क्या कहता है कि क्या दिया हुआ है। देखिए, समेशन ऑफ क्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ, -340 किलो जूल पर साइकिल। दैट इज नथिंग बट Q1 से 2 प्लस Q23 प्लस Q31 प्लस Q41। या एक काम करते हैं, वैल्यू को अभी सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, ये समेशन हो जाएगा, समेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। हमको समेशन ऑफ क्यू दिया हुआ, Q1 टू Q2 देखो दिया हुआ, Q1 टू दिया हुआ, Q23 दिया हुआ और Q34 दिया है। Q421 निकलेगा कि नहीं? Q421 will be equal to how much? Summation of Q minus Q12 plus Q23 plus Q34 होगा या नहीं होगा? अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो Q2 का यूनिट है किलो जूल पर साइकिल और यहाँ पे दिया हुआ किलो जूल पर मिनट, तो आप क्या करोगे, दोनों का यूनिट यूनिफॉर्म कर लेंगे। तो हम सिंपली यहाँ क्या कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू कितना दिया हुआ टोटल -340, ये यूनिट पे ही ध्यान दीजिएगा, हमेशा यूनिट पे ध्यान देंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनटू दिया हुआ हमको किलो जूल पर मिनट में लाना है, क्यों, देखिए इसमें कितना दिया हुआ है 0 प्लस 42,000 माइनस 4200, ये दिया हुआ है किलो जूल पर मिनट। देयरफॉर समेशन तभी हो सकता है एडिशन जब दोनों का यूनिट सेम हो। तो किलो जूल पर साइकिल है, किलो जूल पर मिनट है, इसको क्या कन्वर्ट करना होगा, किलो जूल पर मिनट में, या फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिए किलो जूल पर मिनट को किलो जूल पर साइकिल, जो भी आपको कंफर्ट लगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें यूनिट किसमें मानना है, ये फिल इन द ब्लैंक करना है, तो हमें फाइनल आंसर किसमें मिलना है, किलो जूल पर मिनट में। देयरफॉर हम अपना कन्वीनियंट के लिए किलो जूल पर साइकिल को किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए, किलो जूल पर साइकिल है, हमको पता है कि पर साइकिल कितना हो रहा है, किलो जूल पर 1 मिनट में कितना साइकिल हो रहा है, वेटिंग में है। तो किलो जूल पर साइकिल और 1 मिनट में कितना हो रहा है, 1 मिनट में कितना साइकिल हो रहा है, इतना। देयरफॉर 1 मिनट में कितना होगा, 200 साइकिल। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 200 साइकिल पर मिनट। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये जो यूनिट आ गया वो कितना आ गया, किलो जूल, इसका यूनिट कितना आ गया, किलो जूल पर मिनट, और इसका भी यूनिट क्या है, किलो जूल पर मिनट। अब हम एडिशन समेशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। देयरफॉर ये जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -68,000 किलो जूल पर मिनट लेंगे। इसका आएगा, अगर इसको हम लोग करते हैं तो 42,000, चलो कुछ आएगा, जब फाइनल आंसर करेंगे तो क्या जाएगा, ये 42,000 है और ये 68,000 है, दोनों निगेटिव ही है, क्योंकि देखिए इसको जब करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव है, देयरफॉर ये निगेटिव, नेट ये क्या हो जाएगा, दोनों समेशन में आ जाएगा। देयरफॉर जब सबमिट करेंगे तो 105800 किलो जूल पर मिनट कितना आ जाएगा, यानी आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -105800, ये आंसर हो गया हमारा, ये फिल हो गया, इसका ये फिल हो गया। अब बताइए कि ये एक्चुअली एक क्विज नुमा हो गया है, अब आपको कौन सा फिल करना है, नेक्स्ट कौन सा फिल करना ज्यादा बेहतर होगा। देखिए ये वाला फिल कर सकते हैं, ये वाला, तो ये वाला जो फिल करेंगे तो कौन सा फिल करना बेहतर होगा। तो देखिए ये हम एक प्रोसेस का समेशन है, हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें लगा सकते हैं, इसमें यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि DQ1 to 2 इज इक्वल टू DU1 to 2 प्लस DW1 to 2। देखिए DW दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, DW हमको पता है,
डी क्यू भी पता है, तो डी यू हो जाएगा, जब डी क्यू इक्वल टू 0 है तो डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग कितना लिख सकते हैं, माइनस इसके बराबर हो जाएगा 4340 हो जाएगा। हम ये स्टेटमेंट के रूप में आपको एक्सप्लेन करना है, हम यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं, यानी -4 ये 4340। इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलर फैशन में सिमिलरली हम लोग किसको लगा सकते हैं, सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं, 1 से 2 के बजाय 2 से 3 में। सिमिलर फैशन में हम लोग लगा सकते हैं 2 से 3। सिमिलरली हम 2 से 3 में भी लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 42,000 क्यों पता है, वर्क डन नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 3। तो बताइए अगेन ड्यू 2 to 3, इसमें वर्क डन 0 हो गया है, यानी वर्क डन जैसे ही 0 हो जाएगा ये वाला टर्म हट जाएगा, यानी डी यू विल बी इक्वल टू डी क्यू, और डी क्यू कितना है इस केसेस में 2 से 3 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 42000। यानी जब भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म वर्क और हीट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट हो प्रोसेस के लिए, तो सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन द सिमिलर फैशन आप बताओ इसको भी निकाल सकते हैं ना, कैसे, डी क्यू फिर सेम लगाएंगे 3 to 4 इज इक्वल टू डी यू, कितना हो जाएगा 3 to 4 प्लस डी डब्ल्यू, क्रॉस करना नहीं भूलिएगा, 3 से 4, तो हमको डी यू दिया हुआ है और डी क्यू दिया हुआ है, डी डब्ल्यू पूछा जा रहा है, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू 3 to 4 माइनस डी यू 3 to 4। आइए देखो ये इटसेल्फ माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -4200 माइनस ऑफ 73200 विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू 3 से 4। तो ये दोनों जैसे ही समेशन करेंगे तो ये वाला क्वांटिटी आ जाएगा कितना, अगर हम इसको करते हैं तो कुछ आ जाएगा 421 वाला अगर हम आंसर करें 3 to 4 का हम डी डब्ल्यू निकालते हैं तो ये आता है 69,000 हाँ 69,000 इतना आ गया। सो सिमिलर फैशन, अब बताओ तो और आपको आसान हो गया, तो अब सारा कॉलम फिल हो गया है, अब कौन सा कॉलम बचा है जो उसको हम लोग फिल कर देंगे, ये कॉलम को ये कॉलम हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब हमें कौन सा बचा है, ये वाला। अब बताइए हम वर्टिकल हम कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, या इसमें देखो एक साइकिल हो रहा है, बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइकिल, सॉरी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ए साइकिल जीरो होगा या नहीं, एक साइकिल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, तो चेंज इन इसका इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस का, यानी क्या हो जाएगा du for 1 to 2 plus du for 2 to 3 plus du for 3 to 1 3 to 4 plus du कितना 4 to 1 इक्वल टू 0। हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये क्या हो जाएगा तीनों का समेशन का माइनस, तो इसको हम क्या कर लेंगे कि इसको जोड़ देंगे, इतना जोड़ देंगे प्लस इतना जोड़ देंगे प्लस दैट विल बी इक्वल टू दिस मच। तो अगर हम टोटल समेशन करते हैं तो du जो आ जाएगा इस केसेस में वो 35540 आ जाएगा। अब बताइए फिर एक प्रोसेस के लिए बच गया, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे dq 4 to 1 प्लस du नहीं इज इक्वल टू du 4 to 1 और dw 4 to 1, तो dw 4 to 1 भी निकल जाएगा, तो dw जब 4 to 1 निकालने जाओगे तो ये आएगा -141340। अब बताइए इसमें किसी को डाउट है तो बताया जाए, अगर इसमें किसी को डाउट है तो बताया जाए, प्लीज से समथिंग इफ यू हैव एनी डाउट। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन फॉर अ प्रोसेस, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम प्रोसेस हम मोर एक्यूरेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सारा जो था हम dq इक्वल टू du प्लस dw जो लगा रहे हैं वो किसके लिए था, ये dq इक्वल टू du प्लस dw हम किसके लिए लगाते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क के लिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो पूछा जाए, प्लीज प्लीज पूछिए अगर कुछ डाउट है तो, नहीं तो फिर हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे रेज द योर कंसर्न। क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो पूछा जाए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे मात्र 4 मिनट अब हमें बचा है, सो आई विल डिस्कनेक्ट एंड प्लीज रिकनेक्ट अगेन सो दैट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा एक कंप्लीट टाइम मिल जाएगा। सो हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज रिकनेक्ट।